हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੈप्टर शुरू करते हैं पार्टनरशिप। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मतलब बिल्कुल ईजी चैप्टर। ये चैप्टर करने तो बाद ना एक या दो क्वेश्चन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਾर्टनरशिप। ਨਾ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਪਾर्टनर नहीं लाइफ पार्टनर नहीं, कला पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है ना। ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ, ਚਾਰ ਵੀ, ਪੰਜ ਵੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਨੇ A B C। ਤਿੰਨ ਦੋਸਤ ਨੇ A B C। A ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, B ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੇ C ਨੇ ਉਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ 50,000 ਰੁਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 50,000, ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ 50,000। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਗੇ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਐ ਮੰਨੋ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ। 10,000 ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਜੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10,000 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ 10,000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਲਾਏ ਨੇ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2:3:5। ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10,000। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਗਿਵਨ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੈਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2:3:5। ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ 10,000। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਤੇ 3 8 ਤੇ 2 10। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 10 ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 10,000। ਤਾਂ 10 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10,000। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 1000 ਦੀ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 1000 ਦੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 2,000। ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 3,000, ਤੀਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 5,000। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਚਲੋ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਗਿਵਨ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ A B C ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ 1,20,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ 1,35,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੇ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 56,700 56,700 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ A ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, B ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, C ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ कैपिटल है, सिर्फ अपने को क्या कैपिटल है। तो मैं आख्या जिन्हें बद रुपए लाए बद प्रॉफिट मिलूगा, तो इसकी रेशो ले ली। हाँ जी सर ले लेंगे, ठीक है। उस तो बाद तुम 15 के टेबल से कटता होना, ठीक है, क्योंकि 15 8 120, 15 9 135, 15 गुना 10
150, 15 गुना 10 150। ये रेशो आ गई कितनी आ गई 8:9:10। ये कादी रेशो आ गई प्रॉफिट की, कादी रेशो आ गई प्रॉफिट की, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग कितना होया 10 19 20 27। रेशो के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना होया 27, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है 56,700। रेशो के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है 27, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है 56,700। पूरा 1 यूनिट की वैल्यू कढ़ी आप 27 दूना 54, पिछे बच गया 27 27 एकम 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर आ गई 2100। सानू ने सारे का शेयर पूछा है, ए का शेयर कितने बराबर आ गया 8 यूनिट। जे 1 यूनिट की वैल्यू इन्नी है तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 8 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 16,800। 9 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर हुई 9 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 18,900। 10 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर हुई 10 नाल मल्टीप्लाई कर देंगे 21,000। तो समझ आ गया होगा भी अपने को कैपिटल गिवन सी आपां ने उन्होंने प्रॉफिट दी रेशो डिवाइड की, प्रॉफिट दी रेशो बनाई तो प्रॉफिट नूं की करता आपां ने डिवाइड, ठीक है। तो नोट करो फिर आपां आगे चलते हैं। चलो हुण आपां टाइप 2 ते चलदे हैं। टाइप 1 सी नाल जाए नोट्स बनाई जी प्रॉपर। टाइप 1 दे विच असीं की देखिया भी अपने को ना सिर्फ कैपिटल गिवन सी, तो टाइप 2 ते चलदे हैं। टाइप बी पार्टनरशिप के क्वेश्चन। सैकेंड टाइप के पता की होंदा है अपने को ना सिर्फ कैपिटल नहीं होंदा, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होंदी, नाल टाइम भी दस्सिया होंदा है। फॉर एग्जांपल देखो मान के चलो ए ने 10,000 रुपए लाए, बी ने 20,000 लाए, सी ने 30,000 लाए, तो ਵੱਧ प्रॉफिट किहनूं मिलूगा ਵੱਧ प्रॉफिट किहनूं मिलूगा तुसीं कहोगे सर सी नूं बिल्कुल सही है भाई, फिर दूजे नंबर ते तुसीं कहोगे बी नूं बिल्कुल सही है, तीजे नंबर ते ए नूं। पर ये तां कैपिटल है, जे मैं कहना भी जिहड़े ए है ए ने जिहड़े रुपए लाए ने वो 10 साल वास्ते लाए ने, ਇਹਨੇ 5 साल वास्ते लाए ने, ਇਹਨੇ 1 साल वास्ते लाए ने। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ 1 ਸਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਲੇ ਰੁਪਏ ਲਾਤੇ ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 1 ਸਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਣਾ टाइम, पहले का प्रॉफिट पहले का कैपिटल, जिवें प्रॉफिट टू कैपिटल गुना टाइम, मतलब कि जे असी कैपिटल ते टाइम दोनों की गुणा कर देंगे तो साडे कोल प्रॉफिट की रेशो आऊगी, तो साडे कोल क्या होगी प्रॉफिट की रेशो। तो तुसीं साइड ते कल इन्नी भी लिख सकते हो जिहड़ा प्रॉफिट है वो किहदे डिपेंड करता है, प्रॉफिट किहदे डिपेंड करता है कैपिटल ते भी ते टाइम ते भी, दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, ठीक है। देखो किवें करना तो कैपिटल पता टाइम पता, जो प्रॉफिट की रेशो लभनी है बस इन्होंने मल्टीप्लाई करो, की कर दो इन्होंने मल्टीप्लाई। पूरे कितना आ जाऊगा 10,000 मल्टीप्लाई 10, पूरे कितना आ जाऊगा 20,000 मल्टीप्लाई 5, पूरे कितना आ जाऊगा 30,000 मल्टीप्लाई। पहला ने क्वेश्चन ते क्वेश्चन में फर्क पता लग गया, उत्ते सिर्फ कैपिटल सी, पूरे की नाल टाइम है, दोनों की मल्टीप्लाई करनी रेशो लईए 4 जीरो नाल 4 जीरो नाल 4 जीरो खत्म। होर किसी टेबल से कटिंग हो रही है नहीं हो रही क्योंकि उरे 3 है उरे 5 ते 2 है उरे कला 10 है, तो रेशो कितने बराबर है कि 10 5 गुना 2 10 3, तो 10 रेशो 3। एक आधी रेशो आ गई प्रॉफिट, एक आधी रेशो आ गई प्रॉफिट दी, समझ गए। बस क्वेश्चन की होगा सुनो टोटल प्रॉफिट दस दूंगा, अगे तो सौखा ही है सोडे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना 23। जिवें फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन के विचों कह दिंदा भी जिहड़ा टोटल प्रॉफिट है, जिहड़ा टोटल प्रॉफिट है वो सोडे कोल हैगा 4600 ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ टोटल प्रॉफिट है कितना 4600। जमी सौखा साडे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना 23, साडे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना 23, ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग कितना 4600। 23 यूनिट की वैल्यू 4600, 1 यूनिट की वैल्यू कितने बराबर आ गई 200, तो पहले का प्रॉफिट कितने बराबर आ गया 1 यूनिट की वैल्यू 200 है 2000, दूजे का कितने बराबर आ गया 2000, तीजे का कितने बराबर आ गया 600। समझ आ गया होगा सारे? जे नहीं समझ आया तो वीडियो ਨੂੰ पॉज करो ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ दोबारा समझो या बैठ जाओ, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो।
ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਲਫਰੈਡ, ਜਿਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 45,000 ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅਲਫਰੈਡ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 45,000 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥ ਪੀਟਰ ਜੁਆਇਨ ਵਿਦ ਅ ਕੈਪੀਟਲ ਆਫ 60,000। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੀਟਰ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗਾ ਪੀਟਰ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਰੇ ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਜਿਹਾ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, -3 ਘਟਾ ਦਈਏ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਉਹਦੇ 20। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ? 60,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ 6 ਮੰਥ, ਆਹ ਉਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ 6 ਮੰਥ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਐਦੂ ਪੀਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸੌਰੀ ਪੀਟਰ ਸੀ, ਪੀਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋਚਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ 6 ਮੰਥ, ਵੀ ਪੀਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਰੋਨਾਲਡ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਰੋਨਾਲਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਲਫਰੈਡ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ 45,000 ਨਾਲ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੀਟਰ ਆਇਆ 60,000 ਨਾਲ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਅਨਦਰ 6 ਮੰਥ ਰੋਨਾਲਡ ਆਇਆ 90,000 ਨਾਲ। ਰੋਨਾਲਡ ਆਇਆ 90,000 ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਦੇ ਮੇਡ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 16,500। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 16,500 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ। ਕੱਲਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਦਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਸੋ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ 1 ਈਅਰ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ? 16,500 ਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ? 12 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਾਲ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਰੇ ਸਾਲ ਲਿਖਤਾ, ਉਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਿਖਤੇ, ਉਰੇ ਦਿਨ ਲਿਖਤੇ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 45,000 ਨਾਲ, 1 ਸਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਜੋ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? 9 ਮਹੀਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਨਾਲਡ ਹੈ ਉਹ ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇਦੋਂ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ? 3 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਤਾ, ਟਾਈਮ ਪਤਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਤਾ, ਟਾਈਮ ਪਤਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਪਤਾ, ਟਾਈਮ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਜੂਗੀ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਕਟਿੰਗ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ 45,000 ਗੁਣਾ 12 ਰੇਸ਼ੋ 60,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 9 ਰੇਸ਼ੋ 90,000 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਰੀ ਕੱਟ ਦੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਆ ਨਾ। ਉਰੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ 0 ਨਾਲ 3 0 ਨਾਲ 3 0, ਚਾਹੇ ਉਰੀ ਕੱਟ ਦੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਆਹ ਸਟੈਪ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਰੀ ਕੱਟਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ। 3 0 ਸਾਰੇ ਚ ਕਾਮਨ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ 15 ਹੀ ਟੇਬਲ ਤੇ। 15 3 45, 15 ਚੌਕੇ 60, 15 ਛਿੱਕਾ 90। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੇ? 3 ਤੇ। 3 ਉਰੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 3 ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। 3 ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬੀ ਦੇ, ਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ 3 ਉਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 3 ਉਰੇ ਵੀ ਕਿਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਦੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟ ਲਓ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 3, 3 3 9, 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਤੇ? 3 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਉਰੇ ਪਿਆ, 3 ਚੌਕੇ 12, 3 ਉਰੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਕੱਟ ਗਿਆ, 3 ਉਰੇ ਵੀ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਤੇ? 2 ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ 2 ਉਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਆਸੇ 2 ਉਰੇ ਵੀ ਹੈ, 2 ਉਰੇ ਵੀ ਹੈ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
किते कौन सर हाँ हो रही है, किते घट दो सर 2 ਨਾਲ 2 ना भाई, ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, P ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, R ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ R ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2:1। ਜਿਹਨੂੰ ਆਹ ਕਟਿੰਗ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਹ ਕਟਿੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤਾਂ ਔਖੀ ਲੱਗੂਗੀ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਕਟਿੰਗ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 4 5। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਯੂਨਿਟ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 16500। ਉਹਨੂੰ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓਗੇ 3300। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 3300। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6600, ਇਹਦੀ ਵੀ 2 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 6600, ਇਹਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3300। समझ आ गया सर, ठीक है। जो नहीं समझा तो दोबारा देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होंगे क्योंकि कैपिटल टाइम अलग अलग है, टाइम अलग अलग हो सकता है, ठीक है सही है। तो नोट करो, फिर आप आगे चलते हैं। चलो ਹੁਣ ਆਪਾਂ टाइप 3 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜੀ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਆ ਜੀ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੇਖੋ टाइप सी पक्का कर लो तुम, बस एक गल ध्यान रखियो भी देखो यार अपने को जिवें टाइम चेंज है, हुण ये तो नहीं भी बिजनेस शुरू किया, मान के चलो असीं 2 जणिਆਂ ने बिजनेस शुरू किया लाख लाख रुपए का, 6 महीनों बाद मैनूं लग्या भी यार नहीं बिजनेस का काम दा है नहीं, मैं की कीता 50,000 रुपए आपदे वापस कट लिए। मैनूं आखा भाई मैं तो बिजनेस छड्ड दे, वो कहंदा नहीं नहीं यार बिजनेस नहीं मैं छड्डण दिंदा, कहंदा मैं कल्ला डुੱਬ जू। कहंदा तूं ऐ कर अद्धे रुपए कट ले, तो मैं 50,000 रुपया कट लिया। तो मेरे हुण जिहड़ा उड़दा लाख रुपया सारा साथ रहा, मेरा तो लाख सारा साथ नहीं रहा, मेरा तो लाख 6 महीने रहा, क्योंकि 6 महीने बाद मैं कितने 50,000 रुपए कट ले। तो एवें अपने को ना अलग अलग टाइम से अलग अलग कैपिटल हो सकते, जरूरी नहीं भी एक कैपिटल सारा साल सेम रहूगी। हो सकता मैं पहले 3 महीने लाख रुपया लादा, अगले 3 महीने कला 50,000 ही रह जाए, अगले 3 महीने कला 25,000 ही रह जाए, अगले 3 महीने कुछ भी ना रहे, जीरो रह जाए, मैं सारे रुपए कट ला, ये भी हो सकता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं बोलना है, तो क्वेश्चन तुसीं लिख लियो, ABC स्टार्ट अ बिजनेस ईच इन्वेस्टिंग 20,000। 3 बंदियां ने बिजनेस शुरू किया, A ने B ने C ने, तिन्ना ने 20,000 रुपया ला के। आफ्टर 5 मंथ A विदड्रॉ 5,000, 5 महीने बाद A ने 5,000 रुपए वापस कट लिए, बाहर कट लिए, ठीक है, मतलब 20,000 चों 15,000 ही रह गया ਇਹਦਾ 5 महीने बाद। तो B ने 4,000 कट लिए, B का कितना रह गया 16,000। तो C ने की किया 6,000 रुपया होर लाता, C ने तो इन्वेस्ट करते, A ते B ने तो बाहर कटे ने, C ने 6,000 रुपया इन्वेस्ट करता, 5 महीने बाद की गल है, फुल स्टॉप। एट द एंड ऑफ ईयर, साल के लास्ट के 1 साल की गल हो रही है, साल के लास्ट च उन्होंने 69,900 का प्रॉफिट होया, 69,900 69900, ठीक है 69,900। तो असीं की दसना, शेयर दसना सारे का। आ जाओ देख ले क्वेश्चन, A है B है C है। स्टार्टिंग में इन्हें कितने रुपए लाए सी 20,000, इन्हें भी कितने टाइम लाए, कितने रुपए लाए सी 20,000, इन्हें भी कितने लाए सी 20,000, क्योंकि मैं देखा सी तिन्ना ने ईच ने 20,000 रुपया लाया, ठीक है। 5 महीने बाद A ने रुपए कट ले, कितने कट ले 5,000। तो यदा मतलब जो 20,000 रुपया सी ये तो 5 महीने रहा, ठीक है, प्लस पर बिजनेस के तो यही रहा, प्लस करांगे ना बिजनेस के अगले 7 महीने ने कितने रुपए लाए 5,000 घटा लिया, जे 5,000 घटा लिया पिछे कितना रह गया 15,000। यदा मतलब अगले 7 महीने उन्हें पर प्रॉफिट अपन साल का दसिया, प्रॉफिट कितना दसिया सी 69,900, ये साल का प्रॉफिट है, 1 साल का। तो अपन 1 साल बिजनेस में चलाना, तो जो 5 महीने ने 20,000 तो 5,000 घटा लिया 5 महीने बाद, यदा मतलब 15,000 रह गया, वो अगले 7 महीने 15,000 बिजनेस के रहा होगा। महीने 5 महीने तो ये उस बाद 5 महीने बाद इन्हें 4,000 घटा लिया, तो कितने रुपए रह गए 16,000 रह गया, कितने महीने वास्ते 7 महीने वास्ते, सही है। प्लस इन्हें देखो 5 महीने तो है, अगले 7 महीने वास्ते ने किया रुपए होर लाते 6,000 इन्हें इन्वेस्ट करता, तो मतलब ये कितने हो गए 26,000, कितने टाइम वास्ते 7 महीने वास्ते, ठीक है। देखो कैपिटल गुना टाइम, कैपिटल गुना टाइम, कैपिटल टाइम, कैपिटल गुना टाइम, कैपिटल गुना टाइम, कैपिटल गुना टाइम। दस क्या कहती कादी रेशो आ जाएगी प्रॉफिट की, कादी रेशो आ जाएगी प्रॉफिट की। हुण अपने इन्नी कलाकारी नहीं करनी भी गुना करो फिर जोड़ो, है ना, आपां उरे ही कटिंग कर देंगे, कॉमन कट के। कॉमन की कटना सर्कल लाइन से ना भाई सारे दोनों का होना चाहिए, क्योंकि उरे प्लस आ गया, मल्टीप्लाई मिलता जी एक कॉमन हो सर जाता है। जिवें देखो कलियां उरे जीरो ने
ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਚ ਲੋੜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। पर जो प्लस आ गया तो दोनों के कॉमन होना चाहिए, ठीक है। समझ आ जाओ, एक दो क्वेश्चन बाद देखो तो जिवें उरे दा 4 0 4 0 4 0 किते कट दूं भी 4 0 ना डिस्कियां पर उरे किहड़ियां ने 3 0 नहीं कट सकदे, समझ गए। तो आपां की करांगे 3 3 0 कट देंगे, 3 3 0 दा सारे कोल ने, ठीक है। होर देखो होर किस टेबल की कटिंग हो रही है 5 देखो 5 इहदे कोल हैगे 5 इहदे कोल भी हैगा 5 दी 15 5 इहदे कोल भी हैगे पर 5 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 ਦੇਖ ਲਓ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 2 ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਾ ਬਣੂਗਾ ਬਾਈ 20 ਗੁਣਾ 5 100 ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਪਾਵਾਂਗੇ 15 7 105 ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 205 ਰੇਸ਼ੋ 20 ਗੁਣਾ 5 100 प्लस है तो प्लस पावे 16 7 112, ठीक है जी। कितना आ गया अपने को 212 रेशो 20 5 100 आ कितना आ गया अपने को 182 तो जोड़ के कितना आ गया 282 तो कादी रेशो आ गई भाई, कादी रेशो आ गई अपने को, कादी रेशो आ गई प्रॉफिट की, कादी रेशो आ गई प्रॉफिट की। टोटल प्रॉफिट तो सानू गिवन है, साडे कोल टोटल प्रॉफिट कितना है देखिए 200 ते 200 400 400 ते 200 600 680 82 82 ते 2 84 94 94 ते 5 99 ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ 699 ਹੋਇਆ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 699, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 699 ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿੰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਲਓਗੇ। 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਾਈਡ ਚ ਬਾਜੂਗਾ ਦੇਖਣ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 100 ਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਣਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ 100 ਹੈ ਤਾਂ 205 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਈ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 100 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 100 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रिपीट नहीं करूंगा यार क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन है कि ਤੁਸੀਂ बैक जाके ना क्वेश्चन दोबारा वीडियो पीछे जाके दोबारा देख लो जो नहीं समझ आया, ठीक है। क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट ने काफी, तो इन्हों नोट करो फिर ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। चलो ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ABC ਐਂਟਰ ਇਨ ਅ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, A ਇਨਵੈਸਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਐਸ ਮਚ ਐਸ B ਇਨਵੈਸਟ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਸ ਲਿਖ ਲਿਓ A ਇਨਵੈਸਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਐਸ ਮਚ ਐਸ B ਇਨਵੈਸਟ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ B ਨੇ ਲਾਏ A ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਿੱਗਣੇ ਲਾਏ, ਐਂਡ B ਇਨਵੈਸਟ 2/3 ਐਸ ਮਚ ਐਸ C ਇਨਵੈਸਟ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਪਏ C ਨੇ ਲਾਏ B ਨੇ ਉਹਦਾ 2/3 ਲਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ 6600 ਹੋ ਗਿਆ 6600, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੱਸਣਾ B ਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ A ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ 3 ਟਾਈਮਸ ਜਿੰਨੇ B ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ A ਨੇ 3 ਗੁਣਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ B ਨਾਲ, ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, कहना B ने इन्वेस्ट किते 2/3 एस मच एस C, B ने कितने इन्वेस्ट किते 2/3 एस मच एस C। उरों यार अपन A ते B दी रेशो कट सकते हैं, रेशो का की मतलब होता है डिवाइड च ले लो, इनु B नु डिवाइड च ले लो, A डिवाइड बाय B, उधर कितना रह जाएगा 3, नीचे 1 भी तो होता है, 3 नु 3 बाय 1 भी लिख सकते हैं। तो अपने को उरे A ते B दी रेशो आ गई, कितनी आ गई 3:1, कितनी आ गई 3:1। एम उरे B ते C दी रेशो, तो सुनो रेशो चैप्टर होना चाहिए चंगी तरह, ठीक है। B ते C दी रेशो कितनी आ गई 2:3, 2:3, ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ A B B C, ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੇਸ਼ੋ ਅੱਡ ਹੋਣ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਮਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ B ਹੈ, ਉਰੇ B ਕੋਲੇ 2 ਨੇ, ਉਰੇ B ਕੋਲੇ 1 ਹੈ, ਤਾਂ B ਨੂੰ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
2 6 समझ गए। बी नूं सेम किया मैं तो अपने को रेशो कितनी आ गई ए बी ते सी दी कितनी आ गई 6:2:3। ये कादी रेशो आ गई कादी रेशो आ गई ये कैपिटल दी ते स्टार्टिंग जब क्लास जो शुरू की सी कैपिटल दी रेशो ही की होंदी है कादी रेशो होंदी है प्रॉफिट दी जे टाइम गिवन ना हो पूरे टाइम सारे का सेम है क्योंकि उन्हें 1 साल बाद प्रॉफिट दसता कि 6600 प्रॉफिट कितना दसता 6600 1 साल बाद पर उन्हें कितने भी ये नहीं कहा भी ए ने 3 महीने काम किया मतलब सारे ने 1 साल काम किया तो टाइम लिखने की लोड़ नहीं गुणा एक क्योंकि सारा टाइम की है सेम तो जी रेशो कैपिटल दी है उही रेशो कादी बन गई प्रॉफिट की तो मैं कह सकता यही रेशो कादी है प्रॉफिट की तो रेशो के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना होया 6 ते 3 9 ते 2 11 रेशो के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना होया 11 पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6600 11 की वैल्यू 6600 1 यूनिट की वैल्यू किहदे बराबर आ गई जी 600 दे 1 यूनिट की वैल्यू किहदे बराबर आ गई 600 दे तो ਇਹਦੀ वैल्यू किहदे बराबर आ गई 6 × 6 = 36 ਇਹਦੀ वैल्यू किहदे बराबर आ गई 1200 ਇਹਦੀ वैल्यू किहदे बराबर आ गई 1800 समझ आ गया ठीक है तो दोबारा रिपीट करते हैं आप एक बार वैसे तुम वीडियो वापस आके देख सकते हो एक बार जल्दी करके दस देना मैं उरों ए तो बी की रेशो बनाई बी तो सी रेशो कंबाइन किया कंबाइन करते किवें हुंदे ने जो जेड़ा दोनों च कॉमन है उन्होंने सेम कर लो कॉमन बी सी बी नूं सेम कर लिया तो ए बी सी की रेशो आ गई कादी रेशो आ गई कैपिटल की पर जिहड़ी कैपिटल की रेशो होंदी है वही कादी रेशो होंदी है प्रॉफिट की क्यों आही की रेशो बन गई प्रॉफिट की तो टोटल प्रॉफिट रेशो के अकॉर्डिंग 11 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6600 11 की वैल्यू 6600 1 यूनिट की वैल्यू 600 तो पहले का प्रॉफिट 3600 दूजे का प्रॉफिट 1200 तीजे का प्रॉफिट 1800 नोट करो तो फिर आप आगे चलते देखो अपन कैपिटल नहीं ना गिवन सी सिर्फ अपन रेशो पता लगी जे अपन सिर्फ रेशो पता लगे तो भी क्वेश्चन हो जाता है जरूरी नहीं अपन कैपिटल चाहिए अपन कैपिटल की रेशो चाहिए होती है ठीक है आगे चलते हैं ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ A B C ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ 7/2 4/3 7/2 4/3 6/5 एक कैपिटल की रेशो होती है कादी की रेशो होती है कैपिटल आगे की कहना आफ्टर 4 मंथ ए इंक्रीज शेयर बाय 50% ठीक है 4 मंथ आफ्टर 4 मंथ 4 महीने बाद जेड़ा ए ने आपका शेयर इंक्रीज करता 50% ए ने आपका शेयर इंक्रीज करता 50% ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2430 टोटल प्रॉफिट कितना है 2430 1 साल बाद तो साथों की पूछ रहा है कहना दसो सारे का शेयर ए का प्रॉफिट ए का बी का ते सी का देखो भाई यार तो जोड़ा प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज शेयर किने किया ए ने ਇਹਦਾ मतलब बी ते सी ने तो ना घटाया ना बढ़ाया क्योंकि क्वेश्चन के किते भी जिक्र नहीं होया ਇਹਦਾ मतलब बी ने जिन्ने भी रुपए लाए ने वो सारे साल वास्ते लाए ने सी ने भी जिन्ने लाए ने सारे साल वास्ते लाए ने पर ए ने जिन्ने रुपए लाए ने वो पहले 4 महीने वास्ते लाए ने फिर 4 महीने बाद उन्हें रुपए बढ़ाते वो 8 महीने वास्ते लगे होंगे गल समझ आ गई चलो तो जो कैपिटल है मैं तुहानू आख्या जो भी रेशो चैप्टर मैं तुहानू सिखाया मैं क्या आख्या रेशो किते भी फ्रैक्शन के नहीं रखनी रेशो किते भी फ्रैक्शन के नहीं रखनी तो जो रेशो को फ्रैक्शन तो खत्म करना है तो तुम की करो नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लो नीचे वाली वैल्यू का की ले लो एलसीएम तो एलसीएम ना गुणा कर दो ਹੁਣ ਕਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਨੀਚੇ 2 3 5 ਸੀ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ 5 ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ 3 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ 5 ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ रेशो का असूल है जो किसी एक नंबर को गुणा किया तो सारे करनी पैंती है ये नहीं भी कल इनू कर दो उन्होंने छड्ड दो ना जे इनू 2 3 5 ना किया तो इनू भी 2 3 5 इनू भी 2 3 5 जिन्होंने एलसीएम लेना होता वो सीधा 30 भी लिख देंगे देखो ये तां किया भी रेशो नीचे फ्रैक्शन है बची क्योंकि देखो 2 नाल 2 कट गया नीचे कुछ भी नहीं बचा 3 नाल 3 कट गया नीचे कुछ भी नहीं बचा 5 नाल 5 कट गया समझ आ गया भी 2 3 से 5 नाल गुणा कर दो क्योंकि रेशो का कोई फर्क नहीं पैना ये तो आप कटे जाएंगे रेशो का पहला जिन्नी रहनी है पर
ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਸੀ फ्रैक्शन से वो खत्म हो जूगी। तो और कितना आ गया अपने को 15 15 7 105 10 40 आर कितना आ गया अपने को 12 12 दिया 36। ठीक है 12 दिया 36 किसी टेबल से कट रहे ने नहीं कट रहे। एक कैपिटल की रेशो आ गई कादी आ गई ये रेशो कैपिटल की पर ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ। ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਰੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪੀਟਲ ਵਧਾਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ 1 ਸਾਲ ਗੁਣਾ 1 ਸਾਲ ਗੁਣਾ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਏ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਏ ਦੇ ਆ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਣਾ 4 ਕਰਤੀ। ਪਰ ਬੀ ਦੇ 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਵੀ 12 ਤੇ 12 ठीक है प्लस ए ने किया 4 महीने बाद क्वेश्चन के गया सी कहना आफ्टर 4 मंथ 4 महीने बाद ए ने 50% शेयर इंक्रीज करता 50% का अर्थ तो 105 का अर्थ कितना होया सारे ਨੂੰ पता 105 का अर्थ कितना होया 52.5 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 50% ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ 50% ਵਧਾਤਾ ਮਤਲਬ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 157.5 ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ 4 महीने हो गए कितने रह गए 8 महीने। समझ लगी नहीं गल ठीक है समझ लगी क्योंकि उन्हें 50% इंक्रीज किया था मैं 50% इंक्रीज करता। दोबारा देखो उन्हें अपन कैपिटल की रेशो दी सी पर काज सी वो फ्रैक्शन के विच तो अपने फ्रैक्शन की नहीं रखनी सारे मैं किया फ्रैक्शन खत्म कर ली 2 नाल 3 नाल ते 5 नाल की करता मल्टीप्लाई फ्रैक्शन खत्म हो गई। उस तो बाद कैपिटल की रेशो आ गई 105 40 ते 36 पर ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ A ਸੀ ਉਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੁਣਾ 4 ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 12 ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਇਹੀ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਇਹਨੇ ਵੀ 12 ਦੇ 12 ਇਹਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ 50% ਵਧਾਤਾ 50% ਕੱਢ ਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹਟਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਲਿਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ 4 है ना क्योंकि 4 उरे भी है 4 दूनी 8 4 उरे भी है 2 बच गए 4 गुणा 10 40 4 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਇतना ਕੱਟ ਦੋ ਚਾਹੇ ਇतना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣਾ 4 ਸੀ ਬਾਰ ठीक है। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 3 ਦੇ ਦੇਖੋ 5 ਦੇ 1 ਦਾ ਜੋੜ 6 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ 7 5 12 17 18 18 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋੜ ਜੇ 3 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਤੇ ਹੁੰਦਾ देखो 3 उरे भी है कट दा किते दोनों तेरा कट दो एक बारी एक मल्टीप्लाई वाली एक बारी कट दो 3 कट दा 3 उरे कट दो 4 ते आ गया 12 3 उरे कट दो 30 9 5 ते आ गया 15 3 उरे कट दो 5 ते आ गया 15 2 ते आ गया 6 5 ते आ गया 15 सही है जी ओके। होर किसी नंबर ते कटिंग हो रही है ना जी होर ते नहीं हो रही है ना। चलो हुण इहनूं सॉल्व कर लईए तां उरे कितना बचे अपने कोले 35 प्लस 525 डिवाइड बाय 10 गुना 2 आई बचे ठीक है। और कितना बचे 10 गुना 4 40 पूरे कितना बचे 36 आधा रेशो पूरे कट लिए माड़ा मोटा आ नीचे 10 है तो 2 के टेबल से 5 के 5 के टेबल से 5 कम 5 105 105 के 35 140 105 के 35 140 रेशो 40 रेशो 36 हुण एक बार दोबारा देख लो किसी टेबल से कट रहे हैं हाँ लग गया पता लास्ट ले 2 अखर 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 4 ਤੇ ਕੱਟਣਗੇ 4 ਦੀ ਇਹ 12 5 ਤੇ ਆ ਗਿਆ 20 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 10 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 9 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਣਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਾਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 35:10:9 ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 45 54 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 54 ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 2400 रेशो के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट है 54 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट है 2403 तो एक यूनिट की वैल्यू लभ लीए लगभग आप 4 से जावांगे क्योंकि चौक चौक 16 एक कैरी ठीक है जे 4 से पिछे कितने बच गए अपने को 0 तो 270 पिछे कितने बच गए अपने को 270 ते 54 पानी कितना होता है 270 54 पानी 270 तो एक यूनिट की वैल्यू किहदे बराबर आ गई भाई 45 एक यूनिट की वैल्यू किहदे बराबर आ गई 45 तो ये असं पहले का प्रॉफिट दसना है पहले का प्रॉफिट कितना 35 यूनिट जे एक यूनिट की वैल्यू 45 है तो पहले का प्रॉफिट किहदे बराबर आ गया 35 गुना 45 दूजे का प्रॉफिट किहदे बराबर आ गया 10 गुना 45
तीजे का प्रॉफिट किहदे बराबर आ गया 9 गुणा 45। अगे कैलकुलेशन कर लोगे जे समझ आ गया ठीक है, नहीं वीडियो बैक करियो दोबारा देखियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो फिर आप आगे चलो। चलो तो जी अपने को नैक्सट टाइप है, तो अपने को ना कई बार अपन कैपिटल भी नहीं गिवन, कैपिटल गिवन ही नहीं होंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन तुम लिखो जिमें ए बी सी कहते 3 पार्टनर ने बिजनेस दे विच, कहते हुज मनी ए दी मनी कहते 4 महीने वास्ते यूज हुई। 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम पीडीएफ शेयर करेंगे आप उहदे विच 12 नंबर क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कहना ए बी सी किसी बिजनेस दे विच आए, ए हुज मनी हैज बीन यूज्ड फॉर 4 मंथ। ए दी मनी आ ए है, बी है, सी है, कैपिटल होंदा एक टाइम होंदा, ए दा अपन टाइम दसता भी ए दे रुपए कितने टाइम वास्ते लगे 4 महीने वास्ते, ठीक है। ते बी दे रुपए कितने टाइम वास्ते लगे एंड क्लेम्स 1/8 ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दसता, कैपिटल टाइम ते की होंदा अपने कोले प्रॉफिट 1/8 प्रॉफिट, जिन्ना भी टोटल प्रॉफिट है ਉਹਦਾ 1/8ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ A ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ 6 ਮੰਥਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ 6 ਮੰਥਲੀ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਲੇਮਸ 1/3 ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 1/3, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹਦਾ 1/3। सी हैड इन्वेस्टेड 1560 फॉर 8 मंथ, सी बारे दसता है 1560 कितने टाइम वास्ते 8 महीने वास्ते, कितने टाइम वास्ते 8 महीने वास्ते। साथों ये पूछ रहा है ए ते बी ने कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। देखो यार बड़ा कैंडिडेट ए दी कैपिटल नहीं सी, कैपिटल नहीं सी, टाइम ते प्रॉफिट बारे दसता, एदा कैपिटल ते टाइम दसता, प्रॉफिट नहीं दसिया। देखो यार हुण मान के चलो 3 जने आ, जे 3 ने टोटल प्रॉफिट सानू 1000 हो गया, 3 टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1000, पहले बंदे नूं मिल गया 200, दूजे बंदे नूं मिल गया 300, कितना हो गया 500, तीजे नूं कितना मिलूगा तुसीं आपदे भी दिमाग ला लोगे भी सारा प्रॉफिट 1000 सी, 1000 चों 500 दा सी 2 जने च वंडता, जिहड़े बाकी बच गए किहनूं तीजे, ओही चीज़ उरे करांगे। देखो ਇਹਦਾ भी प्रॉफिट पता ਇਹਦਾ ही पता, ਤਾਂ बाकी प्रॉफिट किहदा होया सी दा। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ प्रॉफिट ही नहीं पता, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ। ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ, 3 ਤੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜੇ। 8 ਦੀ ਆ 24 ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 24 ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ 24, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1/8 ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ। 24 ਦਾ 1/8 ਕਰਾਂਗੇ, 1/8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 3, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 3, ਇਹਨੂੰ 1/3, 24 ਦਾ 1/3 ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 8, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 8। ਆ 24 ਆਪਣੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨੇ ਲੈਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੈਟ 24 ਕਾ ਤੋਂ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤੇ 3 ਦੇ ਸੌਖਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 24x ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲਾ 24 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ। ਤਾਂ 1/8 24 ਦਾ 1/8 3, ਇਹਨੂੰ 8 ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਤੇ 3 11, 11 ਬਣੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਸੀ ਦਾ। 24 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾ ਦੋ, ਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 13। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਤੀਜੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ A ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ A ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ A ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਣਾ A ਦਾ ਟਾਈਮ, कैपिटल गुना टाइम, याद करो क्लास की स्टार्टिंग, कैपिटल गुना टाइम का रेशो दसदा हुंदा प्रॉफिट, ए दा कैपिटल ए दा टाइम, ते मैनूं एक सी बारे पता ना, सी बारे सारी इन्फॉर्मेशन पता है, तो सी नूं यूज करूंगा, सी दा कैपिटल सी दा टाइम, ए दा कैपिटल ए दा टाइम, सी दा कैपिटल सी दा टाइम, कैपिटल गुना टाइम का रेशो आ जाएगी है प्रॉफिट दी, तो ए ते सी दा प्रॉफिट दी रेशो कितनी है 3 रेशो 13, ए ते सी दे प्रॉफिट दी रेशो कितनी है 3 रेशो 13, ठीक है। चलो उन्हें सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, इन्हों इधर ले जाएंगे a गुना 4 गुना 13, इन्हों उधर ले जाएंगे 1560 गुना 8 गुना 3, ठीक है। कर ली करिए 4 के टेबल से 2 ते आ गया 8, उस बाद 13 के टेबल से 13 गुना 12 156 होता है 120, तो a की वैल्यू कितने बराबर आ गई 6 12 72 720, तो a की वैल्यू कितने बराबर आ गई 720,
ठीक है। उन्हें अपन ए का शेयर भी पूछा तो बी का भी, बी का तुम आप दिमाग ला के देखो, ठीक है। देखो तो बी का कैपिटल गुणा बी का टाइम, होर अपन इनफॉर्मेशन किहदे बारे पता, सी का कैपिटल गुणा सी का टाइम, कैपिटल गुणा टाइम, कैपिटल गुणा टाइम, ये प्रॉफिट की रेशो होंगी है। तो बी ते सी के प्रॉफिट की रेशो कितनी है 8 ते 13, तो बराबर किधर रख रहे 8:13, एवं क्रॉस मल्टीप्लाई करके जिवें ए की वैल्यू लभी है एवं बी की वैल्यू लभ लोगे, ठीक है। जो तुम कटिंग करोगे आप बड़ा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी अपने को 1280, बी की वैल्यू के बराबर आ जाएगी 1280, ठीक है। तो हम जो भी क्वेश्चन पूछा हो, जो तो उन्हें पूछा ए ने कितना शेयर किया 720, जो पूछू बी ने कितना किया 1280, जो दोनों का सैपरेटली पूछूगा तो 720 तो 1280, पर जो पूछ ले भी दोनों ने टुगैदर कट्ठिया ने तो दोनों का जोड़ देंगे, 720 तो 1280 कितना बन जूगा 2000। समझ आ गए, कोई भी ऊपर क्वेश्चन बना ले तो असं सारे दस सकते हैं, ठीक है। तो नोट करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करियो। चलो आगे चलते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में की कह रहे हैं, कहना ABC एंटर इन अ पार्टनरशिप विद कैपिटल 25,000 30,000 ते 15,000। ABC बारे दसता अपन कैपिटल ABC 25,000 30,000 ते 15,000। ABC का कैपिटल दसता, कहना A इज वर्किंग पार्टनर एंड गेट्स 30% ऑफ प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। हाँ यार बड़ा घैंट क्वेश्चन। ए ना वर्किंग पार्टनर है, हुण जिवें देखो सी तीन बंदियां ने बिजनेस शुरू किया हुण, ठीक है। पर वो जिहड़े दो बंदे ने वो तो सरकारी जॉब ते लगे हुए आपदा काम करते हैं, मैं कल्ला विहला, तो वो मैनूं कहंदे भी तू बह जा कर उरे, तू हिसाब किताब लाई चलेगा। हुण मैं जो बिजनेस कल्ला रन कर रहे हैं तो मैं एक्सट्रा रुपए लूँगा भी यार मैनूं, मैं छोटा नौकर थोड़ी रखिया, मैनूं रुपए दो, मेरी सैलरी दो, मैं फिर बैठूंगा। तुसीं तां विहले, तुसीं तां पा जांदे हो, कल्ला बिजनेस हिस्सा पाउण नाल ये नहीं भी प्रॉफिट बराबर बनना। तो जो कोई बंदा बिजनेस को रन करता है उन्होंने एक्सट्रा रुपए मिलते हैं, वो ये क्वेश्चन के विच जिहड़ा ए है ना, ये बिजनेस को मैनेज कर रहा है, बिजनेस को रन कर रहा है, तां करके ए नूं 30% प्रॉफिट, जिन्ना भी टोटल प्रॉफिट है उसका 30% प्रॉफिट इनू बिजनेस को मैनेज करना मिले, बिजनेस को की करना मिले, मैनेज करना। हुण टोटल प्रॉफिट 100% होगा, टोटल प्रॉफिट कितना होगा 100%, 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30% ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ 70% ਬਾਕੀ 70% ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੁਅਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ 70% ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਘੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਲਾਏ ਨੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਏ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਏ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਉਹ ਇਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ, ठीक है। चलो देखिए हम करिए सॉल्विंग, चलो आगे देखिए। तो अगे कहना बैलेंस प्रॉफिट इक्वली डिपेंड करता एट द एंड ऑफ ईयर, साल के लास्ट से ए नूं 200 रुपए ज़्यादा मिले बी ते सी नालों, ये क्वेश्चन के लिखे एक साल के लास्ट से, एक साल के लास्ट से ए नूं बी ते सी नालों, जिन्ने भी बी ते सी दोनों नूं मिले, ए नूं उदों भी 200 रुपए ज़्यादा मिले, बी ते सी नालों ए नूं कितने रुपए ज़्यादा मिले 200, ठीक है। बी ते सी दोनों के जोड़ के उदों भी जो 200 रुपए ज़्यादा मिले, ठीक है। असं दसना टोटल प्रॉफिट कितना या ए कितना मिले बी को। देखो यार मैं टोटल प्रॉफिट मान लिया 100%, टोटल प्रॉफिट आप कितना मान लिया मैं 100%, हरेक वैल्यू आपके 100% होती है, वह 30% तो ए सीधा सीधा मिल गया, 30% कदों मिल गया क्योंकि बिजनेस में मैनेज कर रहे। जो 70% है इनू डिवाइड करेंगे आप इस रेशो से, क्योंकि क्वेश्चन में आखिर कैपिटल रेशो 5 के टेबल से 5 ते 6 ते 3, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ 70% ਬਚ ਗਿਆ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡ ਦਾਂਗੇ 5 11 14, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਟੋਟਲ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ ਇਹ 14, ਪਰ ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ परसेंट प्रॉफिट बचा 70%, तो 14 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 70%, क्योंकि ਇਹ टोटल प्रॉफिट 14 यूनिट है, पर ये टोटल प्रॉफिट कितना 70%, क्योंकि 30% तो पहले ही देता ही, तो 14 की वैल्यू 70%, एक की वैल्यू 5%, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 25%, ये वैल्यू कितनी आ गई 30%, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 15%, ठीक है। भाई प्रॉफिट डिवाइड करता नहीं जी, आ ए आ 30% भी था, तो ए नूं इन्ना दा मिली मिलिया, आ कदों मिलिया इहनूं 25%, 25% इहनूं 25,000 करके मिलिया, इन्हें रुपए लाए सी,
ठीक है, इन्हें वध लाए सी 30 मिल गया, इन्हें घट लाए सी घट मिल गया, पर ए नूं 30% प्रॉफिट है, बिजनेस रन करते मिले तो ए नूं टोटल प्रॉफिट कितना मिले 55%, बी नूं कितना मिले 30, सी नूं कितना मिले 15। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਡਾਟਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਵੀ A ਨੂੰ B ਤੇ C ਨਾਲੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, A ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 55%, B ਤੇ C ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, B ਤੇ C ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਮਿਲਿਆ 45%। ਤਾਂ A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ, A ਨੂੰ 55 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 45, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ 10%। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ 200 ਰੁਪਏ, ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹ परसेंटेज के अकॉर्डिंग 10% ज़्यादा मिले, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 200, तो 1% की वैल्यू कितने बराबर आ गई 20 रुपए से, 1% की वैल्यू कितने बराबर आ गई 20 रुपए से। तो हुण असीं जे टोटल प्रॉफिट दसना है, टोटल प्रॉफिट कितना बनया सी असीं 100%, जे एक की वैल्यू 20 आ गई तो 100% की वैल्यू कितने बराबर आ गई 2000, 100% की वैल्यू कितने बराबर आ गई 2000। जे पूछो टोटल प्रॉफिट कितना 2000, जे पूछो ए का प्रॉफिट कितना तो ए नूं कितना मिले 55%, जे एक की वैल्यू 1% की वैल्यू 20 है तो 55% की वैल्यू कितने बराबर हुई 1100 में 20 ना गुणा कर दूं। जे बी का प्रॉफिट पूछूं बी नूं कितना प्रॉफिट मिला, बी नूं 30%, 1% की वैल्यू 20 है तो 30% की वैल्यू कितने बराबर हुई 600। जे सी का पूछूगा 15%, हाँ 1% की वैल्यू 20 है तो 15% की वैल्यू कितने बराबर हुई 300। समझ गए, चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, टोटल प्रॉफिट पूछ ले, ए का पूछ ले, बी का पूछ ले, सी का पूछ ले, असीं सारिਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है जी, तुहानूं नोट करो, फिर ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, तो पार्टनरशिप का कंसैप्ट ना सिर्फ कल्ले इतनी नहीं लगता भी बिजनेस ही लगता है ना। तो हुण जिवें मान के देखो आप कोई जमीन रेंट ते ले ली, 3 बंदे ने, ए ने, बी ने ते सी ने रेंट ते ले ली, जमीन काहदे वास्ते रेंट ते लैती, ठीक है मझां चराउण लई, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨਾ बेचारे काम करते सी, मझां चलाउण आउंदे सी, ठीक है। तो इन्होंने जमीन रेंट ते लाई, ਇਹਦਾ कोई ना कोई रेंट होगा 10,000 20,000 10,000 2,000 जिन्ना भी, मान के चलो 2000, बाद में चेंज कर दूँ आपके अकॉर्डिंग भी वैल्यू थोड़ी सौखी रहे। तो एक बार सिर्फ समझ में मान के चलो 3 बंदियां ने जमीन रेंट ते ले ली 2000 से 2000 की 3000 मान लेने, तो देखने की लग रहा है भी सारे किन्ने किन्ने रुपए आउणगे, 3 बंदे ने किन्ने किन्ने आउणगे। जे हर महीने वो 3000 रेंट दे रहे हैं जमीन का, एक बंदे किन्ने किन्ने आए, तुसीं कहोगे 1000 बिल्कुल ठीक है भाई उरे तक का। पर जिहड़ा ए है ना, ए कोले 50 मज्जां ने, बी कोले 30 ने, सी कोले 20 ने। हुण मैनूं ऐ दसो, ये तो 50 मज्जां लेके आउंदा, 30 लेके आउंदा, 20 लेके आउंदा, हुण वध रेंट किहड़ा दूगा, तुसीं कहोगे सर ए दूगा, वध रेंट कौन दूगा ए, क्योंकि ए कोले वध मज्जां ने। तो कुल मिला के जां काओ बफे तो कुछ भी कह लो भी जेड़ी रेशो काउस दी है वही रेशो कादी होगी रेंट दी। हुण ना एक गल तुसीं दिमाग ला के चलना, ये नहीं है भी जेड़ी रेशो कैपिटल दी वही प्रॉफिट दी, उत्ते कैपिटल ते प्रॉफिट है, उरे की है काओ ते रेंट है। कल नूं एवें भी क्वेश्चन बन जूगा भी 3 मुंडे पीजी च रहिंदे सी, उन्हां ने एक कमरा किराए ते लैता, उन्हां चों जिहड़ा पहला मुंडा है वो सिर्फ 3 महीने रहा, एक 6 महीने रहा, एक 9 महीने रहा। तो तुसीं आप दसो रेंट बराबर देणगे ना, जिहड़ा 9 महीने रहा वध रेंट दूगा, मतलब कि टाइम भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो किन्ने बंदे ने ये भी डिपेंड करता है, उरे काउस किन्नियां ने ते किन्ने टाइम वास्ते रखियां ये भी डिपेंड करता है। जिवें देखो जिहड़ा ए है, एक आप क्वेश्चन लिखते हैं सीधा दे ऊपर, तो तुम याद समझोगे। क्वेश्चन नंबर अपने को आ गया है 7। वो कहना 4 मिल्कमैन ने, ठीक है, ए कोले 24 काओ ने 3 महीने चलाने, ठीक है, 4 मिल्कमैन ने, ए ने 24 काओ 3 महीने वास्ते चलाने, 24 काओ 3 महीने वास्ते। ते बी ने की कीता, बी ने 10 काओ 5 महीने वास्ते, 10 काउस 5 महीने वास्ते, ते सी ने 35 काउस 4 महीने वास्ते, ते डी ने 21 काउस 3 महीने वास्ते। तो सानू कहना ए दा जिहड़ा रेंट है, ए दा जिहड़ा शेयर है, हुण देखिए रेंट भरने की ना तिन्ने सारे चारे कितने हो गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ए ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਰਫ ए ਦਾ ਰੈਂਟ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ए ਦਾ ਰੈਂਟ 720 ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੈਂਟ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ए ਨੇ 720 ਰੁਪਏ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੇਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਉ ਚਰਾ ਰਹੇ ਨੇ,
किन्ने टाइम वास्ते रह रहे, दोनों चीज़ां मैटर करदियां ने, किन्ने मुंडे रह रहे हैं पीजी च, किन्ने टाइम वास्ते रह रहे हैं, है ना, वही गल है। देखो तो उन्हें जिवें कैपिटल गुना टाइम करते सी कि काऊ गुना टाइम, काऊ गुना टाइम, काऊ गुना टाइम, काऊ गुना टाइम, ये की आ गई रेशो आ गई ना रेंट की। चलो ये किसी टेबल से कढ़ रहे हैं, जिवें ए दे विच भी होवे, बी दे विच भी होवे, सी दे विच भी, डी दे विच भी। हुण जिवें देखो 3 उरे हैगा, 3 उरे नहीं किते, हुण 2 देखो 2 उरे हैगा, 2 उरे भी हैगा, 2 उरे भी हैगा, पर 2 उरे नहीं हैगा, समझ गए। तो लगभग कोई कटिंग नहीं हो रही, आप सीधा की करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, अपने को कादी रेशो आ जाएगी रेंट की। तो उरे कितना आ गया 24 दिया 72, उरे कितना आ गया 50, उरे कितना आ गया 20 140, उरे कितना आ गया 63। तो ये कादी रेशो आ गई, कादी रेशो आ गई ये रेंट की, कादी रेशो आ गई रेंट की। तो ए कितना रेंट दूगा 72 यूनिट, ये सी रेशो है, ये की है रेशो, पर ए का तो नहीं दसता भी कितना रेंट देता है 720। जे 72 यूनिट की वैल्यू 720 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 10। तो यह कितना रेंट दूगा 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई 500, ये कितना रेंट दूगा 1400, ये कितना रेंट दूगा 630। पर उन्हें की पूछा, उन्हें सारे का रेंट पूछा, तो सारे का रेंट कितना होया, जोड़ लोगे तो 1400 2100 2600 2600 ते 6 3200 3250, तो टोटल रेंट कितना होया 3250। या तो इवें कर लो या उरे जोड़ लो, इन्होंने जोड़ लो टोटल, ठीक है भी कितने यूनिट है टोटल, तो 200 300 320 322 325, तो टोटल कितना होया 325 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 थी, 325 यूनिट की वैल्यू के बराबर होगी 3250 रुपये। समझ आ गया होगा सारे ने, ठीक है। तो सिंपल जो क्वेश्चन सी इन्हों नोट करो, फिर आप अगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन देखो यार, ठीक है। क्वेश्चन को पहले ध्यान ना पढ़ियो, ध्यान ना समझियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जिहा तुहानूं औखा लग जाएगा। कहना 2 पर्सन ए एंड बी टेक अ फील्ड ऑन रेंट, 2 पर्सन ने ए ते भी उन्होंने कोई फील्ड रेंट ली लेती। ए ने 21 हॉर्स 3 महीने ली, चराए 15 काऊ 2 महीने। ए बारे दस रहे हैं, ए ने 21 हॉर्स 3 महीने ली, 21 हॉर्स 3 महीने ली, तो अपने को होर की करे 15 काऊ 2 महीने ली, 15 काऊ 2 महीने। ए बारे दस रहे। तो जोड़ा बी है उन्हें 15 काऊ 6 महीने ली, प्लस है ना 21 हॉर्स 3 महीने ली, प्लस 15 काऊ कितने महीने ली गया इसने 2 महीने ली, ठीक है। ये तो ए नहीं करा, उन्हें 21 हॉर्स ते 15 काऊ, ठीक है। तो आप जोड़ांगे ना भी आ भी आ, ठीक है। तो बी बारे की दस रहे, जोड़ा बी ने 15 काऊ 6 महीने ली, 15 काऊ 6 महीने ली, प्लस 40 शीप 7/1/2, 7/1/2 कितना होगा 14, 15/2, 15/2 उन्हें आखिर 7/1/2 महीने लिया, तो सारे पता 7 नहीं 14 1 15 भी 15/2 होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के इतनी चीज़ की बनी। तो उस तो बाद कि कहना इन्हों डे एक दिन के 3 हॉर्स पता किन्ने खाते जिन्नियां 5 काउस, ठीक है। तो कुल मिला के आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बना कि 3 हॉर्स कि बराबर ने 5 काउ। अगे की कहना 3 हॉर्स 5 काउ के बराबर ने, तो 6 काउ 10 शीप के बराबर ने, 6 काउ 10 शीप के बराबर ने, 6 काउ 10 शीप के बराबर। असीं दसना है भी ए ने किन्नी फ्रैक्शन ए ने रेंट पे किया, किन्ना पार्ट जिन्ना भी रेंट पे किया वो तो किन्ना पार्ट ए ने पे किया। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन। देखो यार जिवें तू पहला क्वेश्चन कितना सौखा सी, क्योंकि सारा क्वेश्चन का सी काऊ दे विच, ये क्वेश्चन आ गया काऊ हॉर्स शीप, तो आप किसी एक दे विच ले आओ, ਜਾਂ कल्ली काऊ नाल ले सॉल्व कर लो, ਜਾਂ कल्ले हॉर्स नाल ਜਾਂ कल्ले शीप नाल, जिस नाल तुहानूं ठीक लगे। देखो तो मैं क्या करना सारे क्वेश्चन हॉर्स कन्वर्ट कर देना, सारे क्वेश्चन का कन्वर्ट कर देना हॉर्स च। तो कन्वर्ट करना जो भी सौखा है, उन्होंने सी की वैल्यू लभ लो, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5 डिवाइड थे कितनी आ गई 3/5 हॉर्स, सी की वैल्यू कितनी आ गई 3/5 हॉर्स। बस उरे कर दो आ सी नूं मैं कट के कितना लिखता 3/5। समझ आ गया, बस सी कटे आर भी सी है, कितना लिख देंगे आप 3/5 हॉर्स, ठीक है जी। उस तो बाद उरे शीप है
तो एस की वैल्यू कड्ढी हो, एस की बराबर आ गया 6, 10 डिवाइड च जाऊगा 6/10 सी। और जो काउच है हम सारे कुछ हॉर्स 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 तो इन्हों भी हॉर्स कन्वर्ट करा। सी की वैल्यू असीं कड्ढे रखी कि उरे भर दें 6/10 गुणा सी की वैल्यू कितनी है 3/5 हॉर्स। ठीक है, तो आप भर दिए एस की जगह भर दिए। हम आप कितना भर देंगे एस की जगह 6/10 गुणा 3/5 हॉर्स। उरे तक सम आ गया सारे। ठीक है, जो नहीं आया ठीक है उरे तक पता लग गया होगा। बस मैं सारे क्वेश्चन हॉर्स कन्वर्ट किया, सी की वैल्यू कड्ढी उरों एस की कड्ढी वो सी च गई, सी की वैल्यू दोबारा भरती एच सारे एच कन्वर्ट करता। ठीक है, हुण चलो आप माड़ी मोटी कटिंग कर ली जिवें आह 5 के टेबल से कितने पे होगा 3 पे ते आह 5 दी 15 आ 0 नाल आ 0 कट गई आ 2 के टेबल से 2 ते। ठीक है, आ 5 सी 5 दी 15। ठीक है, हुण मैं साफ साफ करके उधर लिख दिंदा साफ साफ करके ए बी। ए का कितना बच गया 21H गुणा 3 21H गुणा 3 प्लस और कितना बच गया 3 3 तीयो तीयो 9 9H गुणा 2 चाहे गुणा कर दो 18H लिख दो कोई ता भी बड़ी गल नहीं। ठीक है, चाहे और 63H लिख दो आप नहीं कर देंगे इनू 21 दी 63H प्लस 9 9 दूनी 18H और कितना बचा 6 ती 18 18 ती 54 प्लस पूरे कितने बच गए अपने को तीयो तीयो 9 12 12 आया 108। ए ने कितने हॉर्स कितना ए का कितना रेंट आ गया रेशो इन जोड़ा गया अपना 11 कैरी 81H ए कितना आ गया अपने को 12 कैरी। ठीक है, ये रेशो आ गई रेंट की कि आ गई रेशो रेंट की एच नाल एच कट गया 81 का दुगना कितना होंगे 162 होंगे तो कितनी आ गई 1:2 तो रेंट कितना भर गया 1:2 मतलब कि ए कितना रेंट भरूगा ए कितना रेंट भरूगा 1 यूनिट टोटल कितना सी 3 तो 3 दे विचों 1 भरूगा तो कितना फ्रैक्शन भरूगा 1/3 कितने फ्रैक्शन भरूगा 1/3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कोई इतना औखा नहीं सी जे समझ के करो दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लियो तो सारा सॉल्व किया ही आपने। बस इन्नी गल करनी क्वेश्चन ना अलग अलग एनीमल्स के आपने एक च लैके आना तो मैं किया सी की वैल्यू कट के उरे भरती उरे भरती उरे एस की वैल्यू कटी पहले सी च आ गई फिर सी दोबारा सी की वैल्यू नहीं भरती एच तो सारे क्वेश्चन एच च ले आया थोड़ा कहना सॉल्व करके बाद सॉल्व भी किया गया। ठीक है, जब सिंपल जी कैलकुलेशन है तो नोट करो तो फिर आप अगे चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी।